Good morning, students. We have just finished our chapter 2 of marketing management as consumer behavior. If you have any doubts, then please message me or text me. And one thing I will give you after a few days, I will give you just chapter wise MCQs. Okay. Now, today I am going to start chapter 3, product. Product is the first element of marketing mix that we all know. Marketing mix क्या है? What is? It is a blender of all 4 P's: product, price, promotion and place. The product, the first P, is the most important element and component of marketing mix, and without this element the concept of marketing is just it becomes useless. Okay, so and the all aspects of marketing management depends on this or oriented with the product only. So if I ask you कि what is product, तो you say मैम आप क्लासरूम में हैं तो देखिए हम लोगों को छोड़ के आसपास जितना चीज़ है वो सब तो हम कह सकते हैं these are all products. जितना कुछ दिख रहे हैं, बोर्ड, राइटिंग माने वाइट बोर्ड, चॉक, डस्टर, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, etc etc, benches, everything, chairs. So all these are products. I would say yes, these are all products. Now this is very important part of our syllabus. Okay. Now meaning of product. Meaning, it is the first element or component of marketing mix that just I have told you. And what is product? A product, from the viewpoint of marketing management, from the viewpoint of business, a product is the item offered for sale. जो सेल करने के लिए जो चीज़ है, that is a product. Or is this product, this concept product includes both product, a tangible thing, intangible thing, or services. Now, a product may be physical or in virtual or cyber form. Physical means it has existence, ये आँखों के सामने आप देख सकते हो. और virtual मतलब आँखों के सामने दिख नहीं रहा है बेटा, but it is a product. Now in our lockdown situation, in this situation, this crisis, COVID-19 is also a product, but we cannot see. It's a virus. We cannot see a deadly virus. Okay, it's also a product. And cyber form means that is the cyber connections, cyber networks, cyber products. That is what we are doing. I just uploading my videos. This video through YouTube. This is also a product. So whatever you see, whatever you use, except yourself, is a product. Okay. Now every product is made at a cost. Obviously, product बनाने के लिए क्या होता है बेटा? एक खर्चा होता है, that is a cost, and each sold at a price. And जो खर्चा हुआ उसके बाद उसको हम बेचेंगे, तो it becomes the price of the product. So the price that can be charged depends on the market, the quality, the marketing and the segment that is targeted. So price depend करता है किसके ऊपर? देखो, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कितना प्राइस ले सकता है. The market will decide what would be the price. That is, the demand and supply of that particular product will decide the price in the market. And it also depends on the quality of the product. क्या ingredients, कितना अच्छा quality ingredients use किया गया और like that. And the marketing मतलब what? The marketing process, it also involves cost.
and or the marketing of the product. It also involves cost and the segment that is targeted, and depends on the target market, the market segment which you have targeted to sell your products in that particular segment. Okay, so all these factors actually influence the price of the product. Now each product has a useful life after which it needs replacement. Obviously हम लोग के कॉलेज में देखो, ये जो वाइट बोर्ड है, पहले क्या था, ब्लैक बोर्ड था, उसके बाद वाइट बोर्ड आया, ये भी रिप्लेस होता है कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद ये भी अनयूजेबल हो जाएगा, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा. बेंचेस देखो, नए नए बेंचेस, साल में कुछ बेंचेस जो डिस्कार्ड किया जाता है, ख़राब हो चुका, उस लोगों को उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोगों के कॉलेज में देखो बेंचेस बनाया जाता है. सो कारपेंटर आके बनाते हैं समर वेकेशन में, समर रिसेस में. So all these products are also replaceable, and the life cycle after which it has to be reinvented, and every product has a life cycle. Now what is product life cycle and what is the concept of that, we will discuss it after certain classes, after few classes. Okay, so this is what product. I think you all have understood what is product. Okay, and product also not only the physical thing, the tangible ones or like that, it also includes services. Suppose you are getting in this college, you have come for what, you have come for getting the service of teaching, and we are providing the teaching service. So you are getting the service of teaching and we are providing the teaching service. So we, the teachers, the college is the service provider, and you are the customers who come here to get the service. So this teaching is also a sort of product. Clear? Now there are different types of product, various types of product. From different angles we can classify them. Now first one is consumer product. Consumer product means what? Now the consumer directly consume or use that product. In the previous chapter, in the previous classes, while I was discussing the consumer behavior chapter, I think I have all discussed in detail the consumables and the consumer, the term of consumer, what does it mean, consumer means, and consume means, and use, everything in details. If you have any problem with this concept, please go through the last few classes. Now consumer products, that is consumables like Pepsi, consumable goods like Pepsi. You are very thirsty, you just buy a Pepsi or any soft drink, cold drink, and just go through this and you will be satisfied with all this. So consumable goods. Now durables goods, durable मतलब क्या है ना, बहुत दिन चलेगा. For example, bicycle, refrigerator, television, all this. That is, it has a long lasted life of that particular product. And services, now I have explained what is service. Teaching is a service, medical assistance, that is treatment, medical treatment is a service, repairing of any electrical instruments, this is also a service, or the network service what you are getting, that is Airtel, Vodafone, Jio, whatever, these are also a service like that. Okay, now number 2, industrial product. So industrial product means these products actually manufactured for the industries, for the business purposes, or these products are also termed as business goods, like that capital plant and equipment, accessories, materials, maybe raw materials, okay, and other components. That is these all products actually required for the industries or manufactured for the industries. Now number 3 is services. So just I have told you the services is a sort of product which cannot be seen, but you are benefited with that service. That is, now I am giving you the service.
I'm just recording the slides and uploading this. I will upload this on the YouTube, and you will get it by 10 at just 10 a.m. because you will be having my class at 10 a.m. Tomorrow. So this is service: repairing service, supervision, canteen service, medical service, teaching service, whatever service. Now number 4 is tangible product. What is tangible product? The tangible asset, you know what is tangible asset, or tangible मतलब क्या है बेटा? Which can be touched, which can be felt, which can be seen. जो देख सकते हो, टच कर सकते हो, which has an existence actually, like building, clothes, vehicles or cars, motor cars, electronic gadgets, etc. Now intangible product, intangible which cannot be seen, but it has a great utility, like insurance policy, medical assistance, data products like JPG files, MP3, etc. These are all which cannot be seen, but you are getting the service. That is called as intangible product. Now number 6, differentiated product. Product differentiated product differentiation, we have already gone through the term product differentiation. That is a product is manufactured with different quality, different shapes, different sizes, different packaging, labeling, etc. That is, we want to differentiate my product in the competitive markets from other competitive products. So differentiated product, here product demands different from others in quality, utility, service, etc. So that product is termed as differentiated product. Now customized product. Now customized product means what? That is, the product is made according to the particular customer choice, or choice of the particular customer. For example, a flat, ओनरशिप फ्लैट. सो आप लोग सपोज एक फ्लैट खरीदना चाहते हो, तो बिल्डर को पहले से बता चुके कि हमारा फ्लैट का अंदर जो डिज़ाइन है ऐसे 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 ऐसा होना चाहिए, बिकॉज आई हैव टू लिव देयर एंड अकॉर्डिंग टू माई कंफर्टेबल जोन आई नीड दिस देयर. हाँ ठीक है, घर में ये चाहिए वो चाहिए, ये यहाँ पर किचन ऐसा होगा. दैट इज़, दिस इज़ according to your choice. You are just getting the product from the seller of that product. तो जो फ्लैट खरीदना है तो आप बोलोगे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए से चाहिए, और क्या देखा जाएगा? वाई कस्टमाइज? दैट इज़, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट. एक कस्टमर के हिसाब से तैयार करना, दैट जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं बेटा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. Now next is number 8, potential product. Potential means the product for the future. That is, हम पोटेंशियल के जो बांग्ला होता है हम बताते हैं कि संभावना हिंदी में भी बता सकते हैं, संभावित हो सकता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मीन्स फ्यूचर के लिए बनाया जाता है. दैट इज़ न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स फॉर द फर्म. कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाया कि विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग और द करेंट रिसेंटली यूज्ड टेक्नोलॉजी. तो कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, हाँ, एंड दिस इज टर्म्ड एज पोटेंशियल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल? मैम ये कैसे हो सकता है, हम कैसे बता सकते हैं? क्यों? देखो बेटा, जब स्मार्टफोन आया था 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, 5G भी आ जाएगा, उसके बाद 6G, वट एवर. सो डे बाई डे टेक्नोलॉजी इज़ अपडेटिंग. सो अपडेशन के साथ साथ और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते कहाँ तक पहुँचेंगे वो हम लोगों को भी पता नहीं बेटा. तो 5G मतलब और भी फास्ट, हम लोग इतना फास्ट होते जा रहे हैं बेटा. तो हम लोग तो मशीन बन चुके, अगले दिन पता नहीं आप लोग क्या होंगे. अब हम लोग के अभी हमारे जो उम्र है वो तो हम लोग मशीन बन चुके हैं, जस्ट मशीन, लाइक अ मशीन. तो आप लोग क्या बनोगे पता नहीं है 20-30 साल बाद. ओके, सो दिस इज, वी कैन से, पोटेंशियल प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट इज कोर प्रोडक्ट.
ना। कोर मतलब एकदम अंदर, जो अंदर है, जो प्रोडक्ट दिखने से आपको लगता है कि ठीक है प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट किसके लिए मशहूर है, क्यों चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, क्यों चाहिए, दैट इज द आंसर विल बी द कोर प्रोडक्ट, कोर थिंग जिसके लिए आप उस प्रोडक्ट को ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अ हाई स्पीड कार, ना, नॉट द मेन प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग द कार में तो इतना सीट होता है, इतना स्पेस होता है, लेग स्पेस होता है, ठीक है चलो ऐसा होता है वैसा होता है व्हाटएवर, लेकिन आप पर्टिकुलर वो कार क्यों ले रहे हो, कुछ फीचर्स तो है एक्स्ट्रा. सपोज स्पीड के लिए वो पिकअप स्पीड बहुत अच्छा है, दैट इज आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल, स्पीड मेक्स द कार यूजफुल टू द कस्टमर, इसीलिए ये कार यूजफुल बन गया और दूसरा कार आप नहीं लोगे, तो दैट स्पीड इज द कोर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्लियर? सो स्पीड इज द कोर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन खरीद लो, हम बार बार एक ही एग्जाम्पल देते हैं बेटा आप लोगों के लिए कि आप लोग समझ सको. कोई स्मार्टफोन खरीद लो, हाँ क्या नहीं, बहुत सारा कंपनीज है, पर्टिकुलर आपको उस कंपनी में क्यों इतना ट्रस्ट है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी, क्यों इतना ट्रस्ट है, बिकॉज फॉर इट्स फीचर, बिकॉज दिस इज़ वेरी फास्ट, इट हैज़ वेरी फास्ट प्रोसेसर. ये एंड्रॉयड है, iOS है, कितना कितना सब है अलग अलग कंपनी के लिए, वो मतलब क्या है, क्यों हम लेंगे, बिकॉज फास्ट प्रोसेसर. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेसिंग power is the core product of particular company handset. Clear? Now 10th is actual product. मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा ना, जो प्रोडक्ट को आप खरीदोगे. फॉर एग्जांपल कार आप खरीदना चाहते हो बेटा, टेस्ट ड्राइव, फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर्स खरीदना चाहते हो, 2 व्हीलर्स आप दुकान में गए, एक टेस्ट ड्राइव मिलता है, आप लोगों को पता है, वो पर्टिकुलर ब्रांड का 2 व्हीलर टेस्ट ड्राइव दिया, उसको खरीदा और घर में ले आया, कलेक्ट किया. सो दिस इज टर्म्ड एज एक्चुअल प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट. ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मीन्स थोड़ा बढ़ाया हुआ, प्रोडक्ट के साथ थोड़ा कुछ देगा. व्हाट इज़ दैट? अब तो कार खरीद के 2 व्हीलर्स खरीद के ले आया बेटा, मोटर बाइक खरीद के ले आया, उसके साथ आपको वारंटी मिला 5 साल का और 1 साल का व 2 साल का वारंटी मिलेगा. उसके बाद कस्टमर सर्विस सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, सर्विस सपोर्ट. उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट बाय द मैन्युफैक्चरर. ओके, सो अब फॉर एग्जांपल आप होंडा का कोई बाइक और स्कूटर खरीद लो, उसके बाद जो सपोर्ट सर्विस मतलब आप EMI पे लोगे बा कुछ लोगे, हाँ EMI पे लोगे इंस्टॉलमेंट में, तो उसका सपोर्ट आपको वहाँ पर बैठ के मिल गया, स्टोर में बैठ के. और वारंटी भी है, 1 साल का या 2 साल का वारंटी है. इसके अंदर कुछ कंपनी देता है, होंडा कंपनी, कि कुछ ख़राब हो जाए जो भी हो ठीक है रिप्लेस कर देंगे. और क्या है, आफ्टर सेल सर्विस, सेल करने के बाद आपको सर्विस है, ठीक है. जो 1 साल के अंदर कुछ होगा तो वो लोग करा देंगे, और उसके बाद सर्विसिंग के लिए आपको उन लोगों को साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा. और क्या होता है, होंडा कंपनी क्या होता है, हर साल एक पर्टिकुलर टाइम में वो सर्विसिंग के लिए खुद कॉल करता है कि मैडम आपका ये टाइम एक्सपायर हो गया, आप आके सर्विसिंग करा लो. सो दिस इज़ अ ट्रस्ट, दिस इज़ अ गुड रिलेशनशिप बिल्ड्स अप विद द कंपनी. सो दिस इज टर्म्ड एज ऑगमेंटेड मतलब प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बाद भी आपको कुछ सर्विस मिल रहा है, दैट इज ऑगमेंटेड एक्स्ट्रा. ओके, नाउ जेनेरिक प्रोडक्ट. जेनेरिक में मतलब एक्चुअल द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम है कोका कोला, लेकिन जेनेरिक सोडा है कोला. व्हाट इज़ दैट ना, वो जो प्रोडक्ट है वो किससे बनता है, कोला से बनता है. क्लियर? सो कोला इज़ द एक्चुअली जेनेरिक सोडा. विदेश में कोल्ड ड्रिंक्स हम कहते हैं, उसको कहा जाता है सोडा विदेश में.
हम लोग कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। ओके, सो सोडा, ये जो सोडा एक्चुअली इट इज़ अ सोडा, तो सोडा का जेनरिक क्या है ना, कोला। कोला से बनता है कोका कोला व कोक। सो कोका कोला और कोक इज़ द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी, the brand name of that particular product of the company, and the generic soda is termed as cola. For example, हम लोग जब बुखार आता है बेटा, कैलपॉल, क्रोसिन वगैरह और भी थोड़ा कुछ दवाई है हम लेते हैं ना, ऐसे ओवर द काउंटर ही खरीद के लेते लाते हैं कि बुखार हुआ, कैलपॉल 650 दीजिए, क्रोसिन 650 दीजिए, तो ठीक है, वो हमसे प्रिस्क्रिप्शन व डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। So what is the generic name of that Calpol? That is paracetamol. Paracetamol is the generic name of Crocin or Calpol. Okay. Now this is termed as generic product. Okay. Next is expected product. Expected product मतलब जो product हम expect करते हैं, ठीक है। हम जो एग्जांपल दिए बेटा, देखो हम घूमने गए, हम सब चलो एक एक्सकर्शन हो जाए बेटा, हम घूमने जाते हैं, तो गए 3 दिन के लिए, कहाँ गए, चलो स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, चलो दीघा घूम के आए, पास ही है, हम लोग सब चलेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हमने यहाँ पर कॉलेज से डायरेक्टली होटल बुक किया, इतना रूम्स चाहिए, इतना स्टूडेंट्स जाएगा, तो इतना टीचर्स जाएंगे, सब जाए, तो क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हमारे टीचर लोग क्या करेंगे, हर स्टूडेंट्स जो के स्टूडेंट्स के कमरे जितना होगा जाके देखेंगे कि साफ़ सुथरा है कि नहीं, हाँ, जो बेडशीट वगैरह, टॉवल्स, टॉयलेट सब क्लीन है कि नहीं, ठीक है, ये सब जो देने वाले थे, जो इंटरनेट में बताया जाता है, ये खूबियाँ है, वो खूबियाँ है होटल का, तो ये सब फॉलो किया कि नहीं, ये सब दिया कि नहीं। दैट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन कि हम होटल में पैसा दे के जाएंगे तो ये सर्विस भी हमको मिलना चाहिए, ये सब चीज़ साफ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। सो दीज आर टर्म्ड एज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। दैट इज़ हम अभी तक खरीदा नहीं, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को पाने के बाद हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन वेदर आई एम गेटिंग दैट प्रोडक्ट और नॉट। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो बहुत दिन तक चलता है, और नेक्स्ट इज़ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट ज़्यादा देर नहीं टिकता, दैट इज़ सोप। ओके, नेक्स्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट कन्वीनियंट हो, मतलब खूब इजीली मिल जाता है, दैट इज़ आसपास में मिल जाता है, दैट इज़ मिल्क, वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर्स, लाइक दैट। शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट मतलब जो हमको शॉप माने दुकान में जाके ख़रीदना पड़ता है, जैसे फर्नीचर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, लाइक क्लोथ्स, हमको एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके ख़रीदना पड़ता है। लेकिन कन्वीनियंस प्रोडक्ट देखो, मिल्क, वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर्स हर जगह मिलता है, एकदम फेरी वाला होता है, वो लेके जाता है, ठीक है। And next is specialty products. Specialty product means those products which are special from other products of the same company, like premium cars, audio system, like this. Okay, now next slide. Now comes to the features of a product. Now एक product आप खरीदना जाते हो ना बेटा, मोबाइल फ़ोन, तो पहले आप देखोगे उसमें क्या क्या फीचर्स है। क्यों? वो फीचर्स अट्रैक्ट करता है। जब कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो न्यूज़ कहीं पर भी, टीवी में ज़्यादातर, तो क्या देखते हो, एक कार का एडवर्टाइजमेंट, हो इस कार में ये है, ये फीचर्स है, वो फीचर्स है। तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, ये फीचर्स है, वो फीचर्स, दैट मीन्स विच अट्रैक्ट you or the customers. The first point is the product is one of the elements of marketing mix. Okay, तो those features actually जो हम बता रहे थे बेटा, which attracts the customers obviously, लेकिन ये features है जो इसका क्या गुण है, ये दिखने में कैसा है, हाँ, ये जो प्रोडक्ट है दिखने में कैसा है, क्या क्या है, वो एक्चुअली क्या है, ये सब मिला के हमारा जो सिलेबस का फीचर्स है वो है, ठीक है बेटा। नाउ
Number first one is, it is one of the elements of marketing mix. Already we have discussed. Now second one is, people with different interest understand products in different ways. मतलब ये जो क्लासिफिकेशन बना ना प्रोडक्ट्स का, जो क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अलग अलग एंगल से देखने के लिए, जो लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं इसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है. जैसे लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मैनेजमेंट, सोसाइटी, कंज्यूमर, सब ये सब अलग अलग देखते हैं, देखने के लिए अलग अलग इसका नाम बन गया. नाउ कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर्स का जो प्रोडक्ट है मेनली हम कहते हैं FMCG, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या है ना, जो हम कंज्यूम करता है, सपोज मैगी, ईपी, बिस्किट्स, चाय, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो हमको डेली नेसेसिटी में लगता है, चाहते हैं बेटा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 इज, प्रोडक्ट्स इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. Next, product is a base for entire marketing program. That I have told you कि product is a base, that is the most important element जिसके लिए ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी, इतना टूल्स कितना बताए, सब बन चुका. नेक्स्ट इज, इन मार्केटिंग प्रोडक्ट मीन्स द कंप्लीट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. मार्केटिंग में प्रोडक्ट का मतलब सब कुछ. सिर्फ एक चीज़ लेके आए, मैम दिस इज़ अ प्रोडक्ट, नो. हम उसका ब्रांड नेम देखेंगे, उसका पैकेजिंग देखेंगे, पैकेजिंग के ऊपर ठीक से लेबलिंग हुआ कि नहीं, जहाँ पर सब इंफॉर्मेशन लिखा रहता है बेटा, वो कलर ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब हम देखेंगे. इसके बाद बोलेंगे हाँ दिस इज़ अ प्रोडक्ट. ओके. Now next is, it is a medium through which customers can be benefited and satisfied. Obviously इसके जरिए कस्टमर को हम सेटिस्फाई करते हैं बेटा, उसका वांट्स, उसका नीड्स फुलफिल करते हैं. और नेक्स्ट इज, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट लाइज इन इट्स सर्विस एंड नॉट इन द ओनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट. ये और एक फीचर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बेटा. देखो, प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी, ये सर्विस देने में छुपा होता है बेटा. हम एक प्रोडक्ट खरीद लिए, ओन कर लिए, ओनरशिप है उस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो क्या होगा बेटा? आई एम जस्ट टॉकिंग, मैंने गिविंग अ एग्जाम्पल. गर्ल्स, यू जस्ट फॉलो. अपने एक सपोज एक सोने का ईयर रिंग्स खरीदा बेटा. ठीक है, ऐसे ही सोने का ईयर रिंग्स देखने में एकदम डाल है, जस्ट सोना खरीदना था, चलो एकदम, लेकिन इसका कोई यूटिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको एक गिफ्ट मिला, सोने का ईयर रिंग मिला है, ओह व्हाट इज़ दिस. अब जब बॉक्स के मैंने देखा, बॉक्स खोल के देखा, देखिए कि बहुत डाल, ये क्या दे गया, तो जस्ट सोने का तार. इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दिस ईयर रिंग्स. इट हैज़ नो यूटिलिटी. इट हैज़ प्राइस, इट हैज़ वैल्यू, बट इसका यूटिलिटी नहीं है. सो आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है बेटा. सो प्रोडक्ट क्या होता है ना, जिसका यूटिलिटी होना ज़रूरी है. क्लियर? नेक्स्ट इज, द प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज्ड. प्रोडक्ट एक्सचेंज किया जाता है, बनाते हैं कोई, उसको एक्सचेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. सो प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज्ड. एंड इट्स प्रॉफिटेबिलिटी इज अनदर फीचर. प्रोडक्ट शुड हैव प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाट इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी? ना, प्रोडक्ट ऐसे बनाया जाता है जिसके लिए तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि मार्केटिंग क्या है ना, जस्ट ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दो. कस्टमर्स जो नहीं जानता है जानकारी दो, इतना डिटेल्स, इतना सुंदर करके अच्छे तरीके से जानकारी दो, सो दैट वो द कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड टू बाय द प्रोडक्ट and they are motivated to buy the product or convinced to buy the product. So and in this way the sales will increase, and obviously the profitability will also increase. So these are all features of a product. These are very simple to remember.
Okay. Now the importance or need of product. Number one is what? Now why product is important? Because it satisfies consumers' needs and wants. हमको तो पता है. Next, number two, product is important because it is a key to successful marketing. की मतलब चाबी. ये चाबी से क्या करते हैं? ताला खोलते हैं बेटा. So सक्सेसफुल मार्केटिंग के लिए ये प्रोडक्ट is the only thing which can successfully satisfy the customers. Ultimately the marketing strategy or marketing process will be successful for the business. और देखो ये प्रोडक्ट कहीं पर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कस्टमर्स को पसंद नहीं आया कस्टमर्स को, तो क्या हुआ किया? हम कहते हैं द प्रोडक्ट फेल्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स. एंड ऑब्वियसली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ज़रिए ये प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाए थे बेटा, वो ऑल्सो विल फेल एंड अल्टीमेटली इट इज़ अ ह्यूज लॉस टू द बिजनेस. नंबर थ्री, प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. देखो बेटा यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, भूल से टाइपिंग एरर, इट इंक्रीजेज होगा. ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देगा. ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे मार्केटिंग करो उसका कि प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा हो और प्रॉफिट भी बढ़ता जाए. एंड फाइनली इट इज़ अ मीडियम और टूल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. ऑब्वियसली एक मार्केट कंपटीशन में अब क्या लेके कंपटीशन करोगे? एक बिजनेस क्या लेके करता है? प्रोडक्ट्स को लेके करता है कंपटीशन. ओके, सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. आहिस्ता आहिस्ता this product chapter is very very interesting and I will try my best to make it interesting to you. Now आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप लोग ध्यान से इसको सुनो, ध्यान से पढ़ो. कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप में बोलो. आप लोगों का कोई डाउट्स नहीं रहता, ये तो बहुत मैंने हमको चिंता में रहता है कि हम कितना मैंने समझ में नहीं आ रहा है क्या, कोई डाउट्स नहीं हो रहा है क्या है. अब सब समझ में आ रहा है बेटा, और मेरे कोई खामियां हैं कि हम समझा नहीं पा रहे हैं. तो प्लीज़ जो भी हो हमको फीडबैक देना. ठीक है, हमारा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर तो है बेटा आप लोगों के पास. प्लीज़. ओके, बाय.